तुम घटाना मत अपना प्रेम, तब भी नहीं जब लोग करने लगे उसका हिसाब। मत घटाना अपना प्रेम, नहीं तो बंद कर देगी बोलना तुमसे चिड़िया, या मुंह फेर लेगा आसमान। नहीं, तुम घटाना मत अपना प्रेम। Any cohesively done group show is a welcome thing, because in the group show we find a range, and in this group also this range is there. Because in the last 60 years of my life, every day perhaps has passed with artists, with shows in a museum, with books on art. So I feel very, very happy, in fact, that this is happening. So this group show is going to give us an experience of art, and that is important. Otherwise, many group shows keep on happening. I can't say the same thing about them. So when I was told about this group show and shown the works, then I talked to Arpit and found that his ideas and thoughts are on a line. He has a concept in his mind. So that has really delighted me. इस समय इसकी बड़ी ज़रूरत है. And I feel happy that a gallery which was already there is trying to make it new. A young director, Tarun, whom I met recently and talked to him, and again I was very happy to know that he is thinking on these lines only. An artist from Manipur. That is important. These are the areas which we are not looking into. That is why I had said in the very beginning that this show has been cohesively thought about. That idea also has gone into it. Then we have to present a range. अब मैं इसको इस तरह कहता हूँ, हम कला में किसी के देखने को देखने जाते हैं. एक how an artist has seen life and expressed it. It is only this that I go to see. मेरा जन्म तटीय उड़ीसा के भोगराई गांव में हुआ था. मैं बचपन से ही आर्ट के प्रति बहुत रुझान रहा और बचपन से ही आर्ट और उड़ीसा के जो कल्चर उससे जुड़ा रहा. मैं जब मेरा हायर स्टडी करने के लिए मैं खैरागढ़ गया तो वहाँ नेचर के बीच में वो यूनिवर्सिटी बहुत ब्यूटीफुली वहाँ एस्टेब्लिश हुआ था और हम लोग आए दिन नेचर का स्केच करना, ड्राइंग करना, वाटर कलर करना उसमें इन्वॉल्व रहते थे. तो नेचर का इंस्पिरेशन अगर देखा जाएगा तो वहीं से मेरे को मिला है. पीएचडी का सब्जेक्ट रहा फोक पेंटिंग्स ऑफ कोस्टल उड़ीसा. तो मेरा रुझान उड़ीसा के फोक पेंटिंग के तरफ हुआ और ख़ास करके जो पट्टो पेंटिंग है उड़ीसा के, वो उसके एलिमेंट्स, उसके स्टाइल्स मेरे पेंटिंग में डिपिक्ट होने लगे. तो मैं अलग उससे ना हटकर मैं उसको अपना लिया अपने पेंटिंग में एज ए सब्जेक्ट. और मैं जो एलिमेंट्स लिए टाइगर और एनिमल्स जैसे डियर हो गया, टाइगर हो गया, उस बर्ड्स, तो उसको बहुत एग्रेसिवली नहीं दिखाता हूँ मैं टाइगर को बहुत माइल्ड, एक प्लेफुल मूड में मैं डिपिक्ट करता हूँ, जिसमें एक उसमें स्ट्रेंथ है
लेकिन वो हमारे करीब है, जैसे नेचर जैसा है। और नेचर में जैसे हम खुद नेचर में रहते हैं, उसका भी उतना ही हक बनता है नेचर में रहने के लिए। लेकिन मेरा जो मेनली है ब्यूटीफुल एनिमल है, जिसको मैं डेपिक्ट करता हूँ मेरे पेंटिंग में, और वो ग्रेस को वो दिखाना चाहता हूँ पेंटिंग के माध्यम से। तो मैं आर्ट नहीं करता तो क्या करता, ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं आर्ट नहीं करता तो मैं आर्ट करता, आर्ट सोचता है। I'm exploring like in landscape of Manipur, hidden landscape. It's been like I'm very like connect with that kind of haziness, like blurry effect. So most of the time I walk at night, and I love the night view. And then it's little bit dark, but there is something the strong point of something like the sparkling of like colors, right? There is countryside also. There are a lot of beautiful landscape. In early morning I used to go there, and then I see around like this foggy, and everyone is very like they are doing very slow stuff. Yeah, it's very cool, peacefully. And then when I came here in Delhi, and then everyone is like in rush. Even at night I didn't sleep. I just go on my terrace, and then I look around the view, the light, and everything. It's like a mix up of Delhi and Manipur. It's combining together with that, and then I just compose the whole things, and then just I create my imagination like landscape, and then some from Manipur and some from Delhi. Yeah, like without art, it's just like not drinking water. See, if you don't every day, if I didn't touch the color, or if I didn't pick up the brush, seems like I don't feel good. Due to like something is like kicking inside. You have to do this, you have to do this. Yeah. Without art, it's just like not drinking water. शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, ये मेरे को भी नहीं पता। तो पेंटिंग का थोड़ा सा हॉबी था, और मेरा जो हाउस था एट द विलेज एरिया एट दैट टाइम, बट नाउ इट्स नॉट विलेज। पीछे एक जंगल था, और मोस्टली मैं स्कूल नहीं जाके उस जंगल में रहता था सुबह से शाम तक। माई इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द नेचर, and I love nature very much. I went to Darjeeling for a tour. I can't explain you. I was mad at that time about the nature. And what is this? Should I call it heaven? तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ नेचर के ऊपर। और mainly I am from the village area. My painting always carry a village image. My technique is completely माई क्रिएशन। मेरा जो ये है टेक्निक है वॉश टेक्निक। पहले कलर मेरे से खेलता था, प्ले करते थे, बट नाउ आई प्ले विद द कलर, क्योंकि ये पेंटिंग इज जस्ट लाइक ए ड्रग एडिक्ट फॉर मी। आई डोंट नीड एनीथिंग, बस पेंटिंग करो। आर्ट इज माई लाइफ, एक्सेप्ट आर्ट आई एम जीरो। अगर इसके लिए मेरे को सारा काम बंद भी करना पड़े, आई एम ऑल्सो रेडी फॉर दैट। आर्ट इज माई बेबी। I think that abstract exists in nature in its truest form. So nature has always been inspiring to me, because I've spent quite a few years in Himachal, and that's what I think that was a game changer for me, because that's where I evolved my style, and I was so close to nature that I eventually became one. So the nature is all what you see in my work. There are clouds, there are trees, there are landscapes. I've been born and brought up in Old Delhi, and you see there is a lot of chaos, but it's also systematic chaos, you would say.
colors I took from the Himachali landscapes, and the lines, they're like bold and strong. They're taken from the places where I've been spending most of my time. The point I am done with the painting, it's the last conversation I'm having with anyone about that. Because, you know, being an abstract, you can't actually explain it into words. And being it visual arts, you know, so that's in itself, it's a language which doesn't need any words to explain. Oh, that's a very tough question, I would say. Yeah. So I don't think, because, you know, I didn't choose art. Art chose me. तो इंस्पायरेशन नहीं है, कहीं से इंस्पायर नहीं हुआ। वो एक जैसे बोलते हैं ना कि बर्न बाई बर्न आ जाते हैं चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वही है। क्योंकि मैं बचपन में जब जाता था एक मेडिकल सा डॉक्टर के पास जाता था, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो क्या करता था ना, कागज़ में कुछ ऐसे पाउडर देते थे, ऐसे पेशेंट को खिला के डस्टबिन में डाल देते थे। मैं बहाना करके जाता था, कुछ सर्दी वर्दी का बहाना, और सारा वाइट पेपर लेके आता था वहाँ से। वहाँ पे जगन्नाथ बनाता था। वो आसान है, क्योंकि ऐसे करो, 2 आँख बनाओ, बस हो गया। तो क्यों बनाता था ये एक नहीं बोल सकते, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो जर्नी वहीं से शुरू हुआ। मैं स्पॉन्टेनियसली काम करता हूँ। इवन मैं कैनवास में ड्राइंग भी नहीं करता, पेंटिंग करने से पहले ड्राइंग भी नहीं करता, ना लेआउट करता हूँ, ना कुछ प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता है। फिगर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता हूँ, जस्ट ए फॉर्म। उसमें जो रिपीटेटिव फिगर आते हैं वो भी मैंने वही चीज़ का, हमारा जैसे कि दिमाग में कोई रिपीटेटिव मैंने रिपीट करता हुआ कुछ आता है, ओवरलैपिंग थॉट आता है। जैसे कि कुछ थॉट आपके दिमाग में आ गए तो जाते भी नहीं है, 2-3 बार आप सोचो या 4-5 बार सोचने के धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो अगर पेंटर नहीं बन पाता तो मैं बड़ा एक दुखी इंसान बन जाता। कारण क्या है ना, मेरा जो सारा आदत है बचपन से एक कंसंट्रेशन रहा कि मुझे पेंटिंग करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है, इसमें से किसे आगे जाके क्या अर्निंग है बोले, कोई आइडिया नहीं था मुझे। कम से कम आज तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इससे करने से क्या होगा, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं ऐसे ही जस्ट कूद गया था कॉलेज में कि देखा जाएगा जो होगा, लेकिन पेंटर मुझे बनना है। जैसे मैं खुद फ्री हूँ, मैं भी अपने काम को उस तरीके से फ्री, एकदम सामने वाला भी उस तरीके से सोच पाए, क्योंकि ना तो उसमें कोई कहानियाँ होती है। आर्ट के बारे में मैं सोचता हूँ कि आर्ट मेरे लिए एक कहानी नहीं है। आर्ट को मैं अलग नज़रिए से देखता हूँ। जैसे बच्चा काम करता है ना, एकदम फ्री हो जाता है काम करते करते, ऐसे ही मैं इस तरीके से अपनी पेंटिंग को और स्कल्पचर को मैं फ्री होकर काम करता हूँ। क्ले वगैरह उठाता हूँ, रैंडम जो फॉर्म आती है वो बनती चली जाती है, तो उसमें जोड़ते 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 क्या निकलता है, ये बाद में रिजल्ट उसका क्या आता है, ये मुझे पता नहीं होता। जब मैं हिमाचल गया तो मतलब वहाँ पे जैसे हम दिल्ली में रहे हैं और दिल्ली से एकदम हिमाचल पहुँच जाना, पूरा हमारा रहने सहने का पूरा तरीका पूरा चेंज हो जाता है। तो जब हिमाचल की मट्टी, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब इतना आकर्षित करते हैं अपने आप में ही आर्टिस्ट को, कि मुझे लगता है हर आर्टिस्ट का एक सपना ही होता होगा कि भाई वहाँ पे जाके पहाड़ों में जाके काम करें, और ऊपर से बर्फ़ के पहाड़ चारों तरफ, और वहाँ जाके आप काम कर रहे हैं तो अलग ही आनंद आता है। जो उसकी मिट्टी खुशबू है वो आप पूरी महसूस कर सकते हैं। जो मिट्टी है ना, मतलब मिट्टी हमें अपने आप को अपने आप से हमें जोड़ती है, क्योंकि मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी से ही हम उत्पन्न हुए हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए जीवन भर। और वहाँ से मिट्टी से जो अलग ही फील आता है अपने हाथ में लेने के बाद ना, तो वहाँ से शुरू होता चला जाता है काम के बारे में। स्कल्पचर बनाना, उसकी स्मेल होती है जब हम मिट्टी को गूंथते हैं, बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है लंबा। तो जब बनाने के बाद जो सांचा तैयार होता है उसका, तो अलग ही एक अपना रूप लेता है, जो कि हमें काफ़ी आकर्षित करता है और बहुत काफ़ी प्रेरणादायक होता है।
जिससे कि हम अलग ही फॉर्म में चले जाते हैं काम करते करते। आर्ट के बिना तो मतलब मुझे लगता है कि अब जैसे आर्टिस्ट के हाथ बांध देना और सामने कलर वगैरह रख दें, वो हालत जैसे हो जाती है आर्टिस्ट की, उस तरीके से आर्टिस्ट हो जाता है, तड़प जाता है। The idea for the show came very naturally to us, and I think that the timing couldn't have been better, as Tarun Art Gallery is on its precipice of redefining contemporary art. Linear Conversations is something that accurately encapsulates what we were after. The task, however, we had at hand was to find a way to depict the journeys of these 6 artists and their very distinct styles, so that it would appear as if they were in dialogue with one another. And fortunately, I found the answer to that as well. As I delved deeper into the works, I found the one thing that actually brought together the distinct journeys of these 6 artists was passion. Passion is what drives them, as it is what drove Hussein, Souza, and so on. It is we as onlookers who saw that passion and continue to see that passion even now in the strokes of Hussein Shah, for instance, but conveniently choose to overlook when it comes to an Anoop, a Harsh, or any other contemporary for that matter. Without trying to sound very cliche about it, I would like to say that this is indeed a new beginning and a call for a change in the way that we perceive new contemporary artists. An artist, they create to satisfy the hunger they have within themselves, and seldom they take a pause. If you'd look at one, you'd always find them being engrossed in their work. But if they just pause for a while, look up, and gaze at the viewer, would that make a difference? That's something to think about.